پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند جو ہماری نجات کی چٹان اور ہماری جانوں کا لنگر ہے، وہ خداوند جو ہمارا اونچا برج اور ہماری مضبوط چٹان ہے جہاں سے ہم پھسلنے کے نہیں، اس خداوند یسوع مسیح کے مبارک جلالی اور قدوس نام میں آج شب پھر آپ تمام مومنین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ اور آپ جو ہمارے ساتھ اسکائپ آئی ڈی پر ہیں، واٹس ایپ گروپس میں کلام کو سن رہے ہیں، یوٹیوب چینل پر اور فیس بک کے ان بڑے 6 مختلف پیجز پر، میرا ایمان ہے کہ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے یک بار پھر ہم سبوں کو برکت دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں بہت ہی معروف زبور، اور یہ زبور 62 ہے، اور یہ 62 زبور جب میں گاتا ہوں تو بھی مجھے بہت پسند ہے، لیکن اکیلے میں، اور اگر جماعت کے ساتھ بھی گاؤں اور ایون آپ بھی گا رہے ہوں تو مجھے اس زبور کے وسیلہ سے بہت برکت ملتی ہے، اگرچہ اور بھی مزامیر کے ذریعہ سے بھی، لیکن یہ اپنے آپ میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ گزرے کل ہم نے خداوند کے ایک خادم کے ذریعہ سے پہلی 6 آیات پر غور و خوض کیا تھا، اور آج اس 62 زبور کی 7 آیت سے لے کر 12 آیت تک، جو اس زبور کی اختتامی آیت ہے، ہم مل کر غور کریں گے۔ روح پاک ہمارا استاد ہے، دعا کی گئی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ آج اس زبور کے وسیلہ سے گزرے کل کی طرح آج بھی ہم کلام ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس زبور کے ٹائٹل میں آیت 1 کے شروع ہونے سے پہلے میر مغنی کے لیے یدوتون کے طور پر داؤد کا مزمور لکھا ہوا ہے، تو گویا یہ بات کلیئر ہے کہ یہ داؤد کا زبور ہے، اور داؤد اس زبور میں خداوند کو اپنی چٹان اور اپنی نجات، رہائی بخشنے والا، چھڑانے والا کے طور پر مخاطب ہوتے ہیں۔ اور داؤد جب خداوند کو اپنے چٹان، اونچا برج، پناہ گاہ، چھپنے کی جگہ اور نجات کے طور پر مخاطب ہوتے ہیں، یوں اس زبور میں ہم یہی تعریفی کلمات خدا کے حضور انہیں پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میر مغنی اغلب ہے کہ یہ ڈائریکٹ خداوند خدا سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہی حمد اور ستائش اور پرستش کے لائق ہیں، اور مقدسوں کی پرستش پر وہ تخت نشین ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ داؤد کے وقت، اس وقت جو کوائر انچارج جو کوئی بھی تھا، اس کے لیے یہ زبور لکھا گیا کہ وہ اس کو بھی گائے۔ اور جب ہم تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کے 6 باب میں، تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کے 16 باب میں، اور تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کے 25 ابواب میں، یعنی 6، 16 اور 25 میں، ہم دیکھتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ یہ آصف اور ہیمان ہوئے ہوں، کیونکہ وہ تھے
जो क्वायर को लीड किया करते थे मेरे बगड़नी के एतबार से। और फिर जब लिखा है यदूतून के तौर पर, यानी दाऊद का मजमूर, तो असल में ये जो बनी यदूतून है, इनका जिक्र जबूर 39 के शुरू में भी, और बाद में हम जबूर 77 के आगाज में भी इनका जिक्र हमें मिलता है। और फिर से तवारीख की पहली किताब के 16 बाब की 41 और 42 आयात, यह हवाला जात में इसलिए नहीं पेश कर रहा हूं कि सिर्फ मैं ऐलान कर रहा हूं और मैं ये जाहिर करूं कि मुझे बहुत पता है। नो, मैं खुदा के कलाम का तालिब इल्म हूं, और अगर आप भी एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन, तो आप बाकायदा पेन, पेपर, पेंसिल लेकर इन हवालाजात को अपने पास नोट कर सकते हैं। अगर खुदा के कलाम के साथ वफादार और सीरियस होकर इन स्टडीज को हम लेना चाहते हैं तो, क्योंकि ये बाद में भी आपके काम आएंगे। तो तवारीख की पहली किताब 16 बाब और इसकी 40, 41 और 42, इन आयात में यदूतून और बनी यदूतून का जिक्र है कि वो कौन थे। और तवारीख की पहली किताब और उसके 25 बाब की पहली 3 आयात में भी इनका जिक्र है। और चूंकि ये काफी हवालाजात हैं, इसलिए मैं इन तमाम हवालाजात को पढ़ने से कासिर हूं। इसलिए आपकी नजर कर रहा हूं कि बाद में आप टाइम निकालें आज ही और इन हवालाजात को खुद तलावत करें, ताकि और बेहतर तरीका से मदद हो सके अगर करना चाहते हैं तो ये बनी यदूतून वो थे जो आलाते मौसीकी पर काम करते थे और म्यूजिशियंस भी थे, और ये गाने वाले भी थे खुदावंद के हुजूर। लेकिन ये म्यूजिशियंस होने के साथ साथ वो खानाए खुदा के दरबान भी थे। वो खुदा के घर की दरबानी किया करते थे। और दाऊद एक और मकाम पर कहता है, मैं खुदावंद के घर का दरबान होना ज्यादा पसंद करूंगा बनिस्बत हजारों साल शरारत के खेमों में रहने के। तो कितनी खूबसूरत बात है। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। बहुत ही खूबसूरत बातें हमें मिलती हैं। दाऊद ने एक बार नहीं कई बार अपनी जिंदगी में मुश्किल हालात को देखा है। और नाजरीन और सामीन, पॉसिबल है कि आपकी जिंदगी में भी मुश्किलात, मसाइब और तकालीफ और परेशानियां राइट नाउ अभी हों, और ईमानदार हो और उसकी जिंदगी में मुश्किलात, दुख और तकालीफ के नशेबो फराज ना हो। इम्पॉसिबल। खुदा के लोगों के लिए यह सब कुछ ऑलरेडी है, और इन बातों को वाकई दर हकीकत जानने की जरूरत है कि खुदा के लोगों के लिए मुश्किलात और दुख और तकालीफ जरूर है। लेकिन इन तमाम दुखों और तकालीफ में बुजुर्ग दाऊद एक ही बात कहते हैं कि मैं खुदावंद ही का मुंतजर हूं। मेरी आस खुदावंद ही पर है। क्यों? इसलिए कि मेरी निजात, मेरी मखलसी, मेरी रिहाई मेरे खुदावंद की तरफ से है, ना ईस्ट से, ना वेस्ट से, और ना ही नॉर्थ और साउथ से।
पूरब और पश्चिम से नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ खुदावन से है। और इस जबूर में बुजुर्ग दाऊद खुदा पर मुकम्मल तौर पर भरोसे की बात करते हैं। और इस जबूर की बहुत सारी खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती यह है कि इस जबूर में जबूर नवीस खुदा से कोई दरखास्त करता हुआ या कोई शिफायत करता हुआ या मनाजात पेश करता हुआ नजर नहीं आता। हां, अपनी मनाजात, अपनी सिफारिशें, अपनी दरखास्तें खुदा के हुजूर पेश करता हुआ वो नजर नहीं आता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो खुदा के हुजूर तारीफ करता है, खुदा पर भरोसा और एतमाद और एतकाद रखते हुए कि मेरा खुदा बहुत जोर आवर खुदा है और उस जैसा कोई और माबूद नहीं है। ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं मेरे और आपके सीखने के लिए। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि दुश्मन ने, जैसा गुजरे कल हम सीख चुके, कि मुझे गिराने की हत्तल मकदूर कोशिश की है, और यहां तक कि वो मेरे लिए बरकत मांगता था, लेकिन दर हकीकत उसके दिल में लानत थी और वो लानत करता था। जबान से बरकत और दिल से लानत। और मुझे यूं लगता है कि आज की दुनिया में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो शायद बरकत और लानत को तो एक तरफ रख दें, लेकिन शायद ऊपर ऊपर से हमें भाई जी क्या बात है, बहन जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन पॉसिबल है कि उनके दिल हमारे साथ उस तौर पर बावफा ना हो जैसे उनके मुंह है। खुदा इंसान के दिलों को जानता है। और एक और मकाम पर खुदा ने कहा, इस उम्मत के लोग ऐसे हैं जो होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझ से दूर है। और दाऊद गैरों पर भरोसा की बात नहीं करते कि औरों पर भरोसा किया जाए। शुरू से ही ना उसको बर्छे पर, ना तलवार पर, ना हलमट पर, ना जरा बख्तर पर, बल्कि रब्बुल अफवाज पर भरोसा और आस थी। आप जानते हैं जात के रहने वाले जूलियत के साथ दाऊद ने रब्बुल अफवाज के नाम से क्या किया था। जब वो गैरों पर भरोसा ना करने की बात कर रहा है, तो इससे पहले हम गौर कर चुके हैं कि शायद अखीतफल उनमें से एक था जिसने बुजुर्ग दाऊद के बरखिलाफ बगावत की। दाऊद का बड़ा भरोसा था अकीतफल पर, दस्ते रास्त था, मशीर था, लेकिन आप पहले गौर कर चुके हैं कि कैसे उसके भी तीवर बुजुर्ग दाऊद के बरखिलाफ बदले और इंतकामी कार्रवाई करना और दाऊद के ही बरखिलाफ अबी सलूम के साथ मिलकर काम करना शुरू हो गया। और यह ईमानदार लोगों के लिए एक इंतबाह है, खबरदार होने वाली बात है कि एक तो हम खुद किसी के लिए मुंह से सिर्फ बरकत मांगने वाले ना हों कि दिल हमारे रास्त ना हो। अगर मुंह से हम दूसरों के लिए बरकत मांगते हैं, खुदा करे कि हमारे दिल से भी दूसरों के लिए बरकत हो। और दूसरी बात, हम किसी के जज और आदिल और मुनसिफ तो नहीं है। एक ही है जो आदिल और मुनसिफ है, वही दूसरों की अदालत करने वाला है। लेकिन हम माजी के तजर्बात से जानते हैं कि कई ऐसे लोग हो सकते हैं
जो शायद ऊपर ऊपर से हमें जफियां डालें, लेकिन उनके दिल हमारे साथ रास्त ना हो, यह जानने की बात है। और अब जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक देखते हैं तो बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि मुझे जुम्बश नहीं होगी, जो मर्जी करते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं इन बातों के सबब से दहशत और खौफ नहीं खाऊंगा। मैं हिलने का नहीं, मैं सरकने का नहीं, मुझे जुम्बश नहीं होगी। और फिर आयत 7 में जब हम चलते हैं तो यहां पर बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं, मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। जब मैं स्टडी कर रहा था तो इस स्टडी के दौरान मैं ये देख रहा था कि मेरा, मुझे या मुझ और मैं के अल्फाज के जैसे खुदा डायरेक्ट बुजुर्ग दाऊद से बात कर रहे हो और बुजुर्ग दाऊद खुदा से मुखातब होकर मेरा खुदा, मेरी चट्टान, मेरी पनाहगाह, ये जो शख्सी तौर पर रिश्ता के ताल्लुक से खुदा से मुखातब होकर दाऊद कहते हैं मैं, मेरा, मुझे 16 बार इन 12 आयात में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। 16 बार मुझ, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। तो फिर अंदाजा कीजिए कि बुजुर्ग दाऊद का खुदा पर कितना ज्यादा भरोसा था कि मुश्किलात और दुखों में हिचकोले खाते हुए बुजुर्ग दाऊद खुदा से मुताल्लिक मेरा खुदा, मेरी चट्टान, मुझे रिहाई बख्शने वाला, मुझे छुड़ाने वाला, मेरा ऊंचा बुर्ज, ओ हो, कितनी बड़ी बात थी कि मुश्किलात में घेरा हुआ होने के बावजूद इर्द गिर्द के किसी शख्स को नहीं पुकारता। बुजुर्ग दाऊद आलमे बाला की तरफ देखते हैं और दरखास्त भी नहीं करते, ईमान के साथ ये कहते हैं मेरा छुड़ाने वाला, मेरा निजात दहंदा मेरा खुदाबंद है। क्या मेरे लिए और आपके लिए यहां पर कोई सबक है? हम उन लोगों के लिए शुक्रगुजार हों जो हमारे दाएं बाएं हमें हौसला देते, दुआएं करते, हमारा हाथ पकड़ते, हमारे सर पर हाथ रखते, हमें दिलासा देते हैं। लेकिन खुदा का बड़ा हुआ हाथ हम पर हो तो भले और किसी का भी ना हो, नो प्रॉब्लम, हमें कहीं भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन आयात में हमने देखा भी है कि किस खूबसूरत अंदाज से यहां पर दाऊद को आजमाइश में देखते तो हैं गुज़श्ता आयात और इन मज़ामीर के लिखे जाने के वक्त, लेकिन वो खुदावन का इंतजार करते हैं और वो कहते हैं अकेला, मेरा अकेला खुदावन मददगार है, क्योंकि खुदावंद ही की तरफ से मेरी निजात है और खुदा पर भरोसे और एतमाद और तकिया करने की बात हमें नजर आती है। बहुत बड़ी
और बहुत गहरी बात है जो यहां हम देखते हैं। तो इस आयत के मुताबिक मेरी निजात और मेरी शौकत यानी शान, सरफराजी, मेरी बल्ले बल्ले खुदा की तरफ से है। मुझे रिहाई वो देगा, मुझे सरफराज भी वो करेगा। बड़ी बात है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है, छिपने की जगह, कुव्वत की चट्टान जहां से हमें जोर मिलता है। और जब मैं स्टडी कर रहा था तो एक आलम ये कहते थे कि बाज़ औक़ात हम खुदा की तरफ देखते हैं कि वो मेरा मुस्तैद मददगार और मेरी मजबूत चट्टान है, और मेरी है चट्टान। लेकिन दूसरी तरफ जब मुश्किलात और दुख और तकालीफ आते हैं तो फिर हम लोगों की तरफ भी देखते हैं। और उन्होंने कहा कि यह गोया ऐसे है कि जैसे हमारा एक पांव चट्टान पर है और दूसरा पांव फिसलने वाली रेत पर है, गीली रेत पर। और आप अंदाजा करें कि फिर कौन सा पांव कायम रहेगा? वही जो चट्टान पर है। लेकिन अगर हमारा दूसरा पांव रेत में है तो हम डूब जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, नाबूद हो जाएंगे। दो मालिकों की खिदमत नहीं हो सकती, एक ही की खिदमत हो सकती है, एक ही की सेवा हो सकती है। और यही बात खुदावंद आज मुझसे भी और आपसे भी चाहते हैं कि एक ही खुदावंद खुदा की परस्तिश और इबादत की जाए, उसी पर भरोसा किया जाए, क्योंकि वो हमारा मददगार है। तो मैंने कहा कि इन 12 आयात में तकरीबन 16 बार खुदावंद पर भरोसा की बात बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी में हम देखते हैं। और फिर बुजुर्ग दाऊद सिर्फ मेरा और मेरी, मुझे या मुझ ही नहीं कहते, बल्कि खुदा के लिए अलकाब जो इस जबूर में इस्तेमाल हुए हैं बड़े खूबसूरत हैं। बुजुर्ग दाऊद इस जबूर में खुदा से कहते हैं वो मेरी चट्टान है, वो मेरा ऊंचा बुर्ज है, वो मेरी पनाहगाह है, वो मेरी नजात है, वो मेरी शौकत है, वो मेरी कुव्वत है। और जबूर 91 में जबूर नबीस यही कहते हैं, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। तो देखिए कि बुजुर्ग दाऊद एक अजीम शख्सियत होने के बावजूद, जंगजू होने के बावजूद, एक पावरफुल शख्सियत होने के बावजूद जानते थे मैं कुछ भी नहीं बिन खुदा के, मेरी कुव्वत उसी से है और मुझे उसी की तरफ देखना है। आयत 8, ए लोगो हर वक्त उस पर तवक्कल करो। यहां पर बुजुर्ग दाऊद ये नहीं है कि वो बजाते खुद सीख रहे हैं कि मुझे खुदा पर भरोसा करना है, बल्कि वो दूसरों को भी ये दर्स देते हैं कि तुम भी खुदा पर भरोसा करो। ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं खुदा पर भरोसा करूं, तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि तुम खुदा पर भरोसा करो। वो जानते थे जो मेरे लिए अच्छा है वो दूसरों के लिए भी अच्छा है, कि लोग जाने कि खुदा ही सब कुछ है।
ए लोगो हर वक्त उस पर तवक्कल करो। और एक और आयत मैं अभी नहीं पढ़ूंगा जिसमें लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, और लानती मलाउन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है। देख लीजिए, बुजुर्ग दाऊद, मुझे नहीं मालूम कोई ऐसी आयत मेरे जहन में आ नहीं रही जहां पर बुजुर्ग दाऊद ने अपने साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हों। अकेले वो गारों में और मुख्तलिफ जगहों पर रहे, इस ईमान के साथ कि मेरा रिहाई देने वाला, मेरा बचाने वाला मेरा खुदाबंद है। और वो कहते हैं, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। किसके सामने? खुदा जिस पर तुम तवक्कल करते हो और करो भी, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। वो यहां ये नहीं कहते दूजिया दे अगे भी अपना टेढ़ नंगा करो, नो। वो यही कहते हैं कि अपना हाल खुदाबंद के सामने बयान करो, क्योंकि तेरे तमाम मसाइल का हल वो है और तुम्हारे तमाम सवालात के जवाबात उसी के पास है। और फिर लफ्ज दोबारा से यहां आया है सिलाह, जिसके माना पाज या थोड़ी देर के लिए रुकना। और जो कुछ इससे पहले कहा गया है और उस पर कुछ देर के लिए गौर करना है कि मेरा खुदा किस कदर अजीम खुदा है, मुझे उस पर भरोसा करना है और अपने दिल का हाल उस खुदाबंद के सामने ही बयान करना है। और फिर जब हम आयत 9 में जाते हैं तो बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे, वो तराजू में हल्के निकलेंगे, वो सब के सब बेसबाती से भी हेच हैं। यकीनन अदना लोग यानी ऐसे लोग जो शायद अमीर कबीर, मशहूर, दौलतमंद, बहुत ज्यादा बाइज्जत लोग नहीं, ऐसे लोग जिनको हकीर समझा जाता है, मुझ जैसे, क्योंकि खुदा ने मुझ अदना को घूरे से निकालकर अपने साथ तख्त पर बैठाया। और पहला कुरिन्थियों पहले बाब में खुदा ने अदना, नाचीज, निकम्मे, बेवजूद, बेवकूफ जो लोगों की नजर में हैं, खुदा ने उनको चुन लिया ताकि उनके वसीला से अपना जलाल जाहिर करे। अदना आदमी बेसबात है, यानी वो भी हमेशा तलक रहने वाले नहीं और उनकी कोई उतनी ज्यादा दूसरे लोगों की निगाह में अहमियत नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो आला लोग हैं, मर्तबा वाले, आगे लफ्ज लिखा है झूठे हैं, वो तराजू पर तोले जाए तो वो झूठे निकलेंगे। और मुझे एक बात याद आ रही थी, हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स कितने दौलतमंद, कितने अमीर, क्या कुछ उनके पास नहीं होता, कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज, जब वोट्स के लिए आते हैं तो शायद आपकी जूतियां भी साफ करें और बड़े बड़े दावे, लेकिन उसके बाद फसली पखेरू उड़ जाते ने, कोई नहीं लागे आउंदा, भले जो कुछ ही
क्यों ना हो, हमारी इज्जतों के साथ खेला क्यों ना जा रहा हो, दे विल नेवर कम बैक और आकर हौसला अफजाई का सबब बने, ये नहीं है। और ऐसे लीडर्स के लिए यहां पर है कि वो आला मर्तबे वाले जो हैं वो झूठे हैं, वो 2 नंबर हैं, वो अगर तोले जाएं तो वो हल्के निकलेंगे। और बेलशजर की बाबत हम यही देखते हैं, वो तोला गया और कम निकला। खुदा ने नविश्ताए दीवार उसको दिखाया और कहा मिने मिने तकीलो फरसीन। ओ खुदा ना करे कि मैं और आप इस तरह के नविश्ताए दीवार को अपने आप के लिए देखें खुदा की तरफ से। काश के हम इस खुदा के कलाम को सुनकर अपने आप को देखें और जहां कहीं कोई कमी और कमजोरी नजर आती है, हम अपना रिश्ता और अपना राबता खुदा के साथ बहाल करने वाले और खुदावन के नाम को जलाल देने वाले हो सके। जब मैं आयत 9 के इख्तितामी हिस्से को देखता हूं, लिखा है वो सब के सब बेसबाती से भी हेच हैं, इंतहाई निचले दर्जा से ताल्लुक रखने वाले। और आयत 10, जुल्म पर तकिया ना करो, जुल्म करके तुम क्या हासिल करोगे, कुछ भी तो नहीं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना फूलो, नाजायज नफा कमाने वालों के लिए भी, जुल्म करने वालों के लिए भी और लूटने वालों के लिए भी कहा गया बाज आ जाओ। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। यहां इंसान पर भरोसा करने और मालो मता पर भरोसा करने से मना किया गया है कि इन चीजों पर भरोसा न करें। दाऊद ने तजुर्बा के साथ इस बात को जाना था कि इससे कोई फायदा नहीं है। मैंने अकीतवल की मिसाल आपके सामने रखी, जिस सबब से दाऊद कहते हैं इंसानों पर नहीं, मर्तबा पर नहीं, लूट के माल पर नहीं, जुल्म पर नहीं कि ऐसी गोली मार देंगे, नो नो नो, इन चीजों पर तुम्हारा भरोसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यह कहना चाहिए तू ही आपने आए करदा दुखिया ते यतीमा दा। काश के ये बात हमारी जिंदगी में हो। दाऊद शुरू में बेसबात, एक हकीर चरवाहा, इवन यसी भी उसको शायद कुछ नहीं समझता था, सैमुअल नबी ने भी उसको कुछ नहीं समझा था शुरू में, लेकिन खुदा ने उसको कुछ समझा कि ये मेरे दिल के मुवाफिक है। उसके बाद मौसीकार, शायर, बादशाह, नबी, प्रॉफिट, और जब वो बादशाह था तो मैं यूं कहूंगा कि ये चरवाहे से बादशाह बनने वाला शख्स, घूरे से तख्त पर बैठने वाला शख्स, आजकल के दौर में अगर मैं कहूं तो उस जमाने में वो बिलियनियर खरबों रुपए का मालिक हुआ होगा। बुजुर्ग दाऊद, यह मामूली बात नहीं है। उन बादशाहों के पास बहुत कुछ था, ताकत भी थी, कुव्वत भी थी, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद उसने अपने बिलियंस डॉलर्स पर भरोसा नहीं किया।
अपने मर्तबा पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि मेरी आस खुदावन अपने खुदा पर है। और मेरे अजीजों, अगर आज की दुनिया को देखा जाए, बादशाहतें एटम बम्स पर के वी आर पावरफुल, एटॉमिक पावर, उनको फख्र है। कई ममलकतों को तेल यानी आयल की वजह से उस पर बड़ा फख्र है, कईयों को अपनी आर्मीज पर। क्या ऐसा ही नहीं कि बड़ी बड़ी ममलकतें एटॉमिक पावर होने के एतबार से फख्र करते हैं? कोई हमारे खिलाफ बोले तो सही, हम ये का ये कर देंगे। अफवाज वाले ऐसा नहीं करते कि जरा भी उनके खिलाफ कुछ बोले तो सही कोई, फौरन उनकी अफवाज और बहरी बेड़े वहां पहुंच जाते हैं। जिनके पास आयल की पावर है, वो ये सोचते हैं वी आर पावरफुल, और अगर हमारे बरखिलाफ किसी ने हैंपी पैंकी की, हम आयल बंद कर देंगे। हर कोई अपनी अपनी ताकत और पावर और जोरे बाजू पर भरोसा करता है। लेकिन बुजुर्ग दाऊद के पास सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद उनका भरोसा खुदावन पर था। खुदावन अपने खुदा पर, माल पर नहीं, सिक्योरिटी पर नहीं, बचत पर नहीं, प्रॉपर्टी पर नहीं, पेंशन पर नहीं, बीमा पॉलिसी पर नहीं, बल्कि खुदावन अपने खुदा पर आपकी आस थी। आयत 11 और 12 जो आखिरी आयात हैं, खुदावन ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना। खुदावन ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने बड़ी तवज्जो से, मैंने बड़े गौर से खुदावन की आवाज को सुना। मेरा खुदा जब मुझसे बोलता है, मेरी तवज्जो उसकी तरफ होती है। जब कोई भी खुदा का खादिम चर्च के पुलपिट पर से, टेलीविजन पर से, स्काइप आईडीज, जूम मीटिंग्स के जरिया से बोलता है, और हम इबादत करने की रूह रखते हुए इबादत में मौजूद होते हैं, तो क्या उस वक्त हम खुदावंद की खुदा के बंदा के वसीला से सुन रहे होते हैं, या हम सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त पास कर रहे होते हैं? दाऊद कहते हैं, खुदा ने एक दफा कलाम किया, वो एक दफा मुझसे बात करता है तो मैं 2 बार सुनता हूं, यानी पूरी तवज्जो के साथ, कि कुदरत खुदा ही की है। यानी खुदा ने मुझ पर इस बात को जाहिर किया, मैं कादर मुतलक हूं, कुदरत, हशमत और बुजुर्गी मेरी है, मेरे सिवा और कोई नहीं है, अकेला वही तमजीद और हम्द और स्ताइश के लायक है। और इस ज़बूर में अकेला के भी अल्फाज ना सिर्फ हमें पहली आयत में, बल्कि उसके बाद दूसरी आयत में भी, दूसरी आयत में और उसके बाद छठी आयत में भी हमें अकेला खुदा जिस पर मेरी आस है बयान नजर आता है। पहली 2 आयत सेम उसी तरह ही है, तकरीबन जैसे 5वीं और छठी आयत है, और दाऊद एक ही कोर्स की सूरत में गोया इन 2 आयत को कोड कर रहे हैं। और आयत 12, शफकत
भी ए खुदावन तेरी ही है। जब हम लफ्ज शफकत की बात करते हैं तो इससे मराद रहम, खुदा की मोहब्बत। खुदावन ये सब कुछ आप ही का है। शफकत भी ए खुदावन आप ही की है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। और यकीनन बुजुर्ग दाऊद शरीयत के दौर, शरीयत के जमाना और शरीयत के तहत थे, और आप ये जानते थे कि हमारा खुदा हर एक शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। क्योंकि यहां हम बुजुर्ग दाऊद को यही कहते हुए देखते हैं, हमारा खुदा शफीक है, वो रहीम है, वो खुदा है जो मोहब्बत करने वाला खुदा है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज इस मुख्तसर सी बाइबल स्टडी के दौरान क्या कोई ऐसा पॉइंट है जिसने मुझे और आपको क्लिक किया हो कि मुझे क्या करना है? हम दूसरों की इज्जत करें, दूसरों के लिए दुआ करें, दूसरों को दुआ या दरखास्तें पेश करें, इट्स गुड। लेकिन इंसानों पर भरोसा कि वो मेरा कोई काम बनाएंगे, इसके बजाय खुदावन अपने खुदा की तरफ हम देखने वाले हों, फिर देखें कि खुदा क्या करता है। हर रोज अगर हम अपनी फिक्रें, अपने बोझ खुदावन के हुजूर सुपुर्द करते रहें तो खुदा जरूर हमारा बोझ उठाएगा, क्योंकि उसका वादा है, अपना बोझ मुझ पर डाल तो मैं तुझे संभालूंगा। और बोझ से दबे हुए थके बांधे मेरे पास आ, मालिके दो जहां खुदावन यीशु मसीह ने कहा, तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। आए हम साए पर भरोसा न करें, बल्कि असल हकीकत पर, ताकि खुदावन का जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो। खुदावन इस कलाम के मुताबिक मुझे और आपको सोचने का फजल अनायत फरमाए। छोटी सी दुआ के साथ इख्तिताम करूंगा। रब्बुल अफवाज, लश्करों के खुदा, आप जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसां हैं, आपकी मोहब्बत और आपके प्यार के लिए शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावन, हमें फजल अनायत फरमाइए कि हम आपके साथ, आप पर भरोसा करते हुए रास्ते से चले। जो इंसान हमारा साथ देते हैं शुक्र हो, जो नहीं देते उनके लिए भी शुक्र हो, लेकिन फजल अनायत फरमाइए कि हमारी आंखें ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदावंद यस्सु पर लगी रहे। खुदावंद फजल अनायत फरमाइए कि हम वो मुबारक लोग हों जिनकी आस और उम्मीद आप पर, तवक्कल आप पर है। इस वक्त में अपने उन तमाम अजीज भाइयों, बहनों, बेटों, बेटियों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए दुआ करता हूं, जिनमें से कुछ इस वक्त अपने प्रेयर पॉइंट्स फेसबुक पर लिख भी रहे हैं। ऐ खुदावन, इन सब की दिली आरजुओं को आप जानते हैं। खा कोई मेडिकल इशू है, खा कोई फैमिली प्रॉब्लम है, खा रुपए पैसे का इशू है, या जॉब का प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, आप जानते हैं, मैं नहीं। यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में इन तमाम लानतों के दूर चले जाने का हुक्म देता हूं। अपने लोगों को शिफा और बरकत, तंदुरुस्ती और सेहत अनायत फरमाइए। खोल दीजिए बंद दरवाजों को, ताकि आज आपके लोगों की दुआ या दरखास्त कल गवाही बन जाए, और यूं आपकी शान बढ़े और हमारा ईमान। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे बफजले खुदा, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक। तब तक के लिए खुदा हाफिज।